So today we will talk about this particular chapter called as the classification of elements. Now, sir, why are we actually classifying elements? Why there is a need in order to arrange elements in a specific order? Okay, why exactly this particular order of arranging in the form of a periodic table? Now, why we are doing all these things? Let us understand. As we have already studied in our class 10th, we all know that initially very less number of elements were present or were known to the humankind. That means initially humans knew only very few elements like iron, or say for example your copper. Very few elements were known, so it was very simple for us in order to remember the properties of these elements. In order to identify these elements, it was very simple. But when the number of elements kept on adding to the list, it slowly became very difficult for us to remember the properties of each and every element, both physical, that is how they appear, what is their boiling point, what is their melting point, what is their strength, okay, whether they are malleable, whether they are ductile, physical properties. Otherwise, it may be their chemical properties, like how it is going to react with oxygen, how it is going to react with water, whether it is a highly exothermic reaction, endothermic reaction. So remembering these things for each and every element becomes very difficult. This led our chemists, physicists, in order to work and in order to find a way in order to arrange these elements in such a way that remembering, studying, and understanding the properties of these elements will become more and more easier. ओके तो जैसा आप लोगों को पता है, से फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल में एक बंदा जाता है, राइट, और अगर वो पढ़ाना चाहता है, इफ ही वांट्स टू टीच इन दैट, अगर रैंडमली मैं बच्चों को बुला के पढ़ाना चाहूंगा, देन आई कैन नॉट टीच. ओके, रैंडमली आई विल कॉल 100 स्टूडेंट्स एंड आई विल से चलो आज पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन. वहां पे एक स्टैंडर्ड 1 का बच्चा होगा, वो बोलेगा फैक्टराइजेशन ये क्या है, मेरे को तो नंबर्स और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ज्यादा कुछ आता नहीं है, right? So that is what happens. First we need to classify people, we need to divide people on the basis of some category. वो क्या हो सकता है? अगर बच्चों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हाइट के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, एज के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, आईक्यू लेवल के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, वेट के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच यू कैन क्लासिफाई और यू कैन डिवाइड योर स्टूडेंट्स. इन द सेम वे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए भी बहुत सारे हम लोगों के कैटेगरीज थे. ओके, बट बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी किए गए इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. बट हम लोग अभी एक स्टोरी के थ्रू जाएंगे जहां पे ओनली सक्सेसफुल मॉडल्स और सक्सेसफुल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जो भी मैंने बताया अभी? नो सर. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. So the first successful attempt which was made in order to arrange elements was done by Dauberner. And what exactly did Dauberner do? Already हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं. So Dauberner tried to arrange the elements. First thing is he tried to arrange the elements in increasing
atomic mass. Okay, say for example, I'm having 10 elements, then the first thing which he did is he tried to arrange the elements in increasing atomic mass. उनके atomic mass या atomic weight के हिसाब से उनको increasing order में पहले arrange किया गया. And then he made small or different triads. What did he make? Triads. He arranged these elements in the form of triads. Now, sir, what are these triads? Okay, so let us understand what are these triads. Tri means three, adds, triads means a collection of three elements. Now, sir, कोई भी collection of three elements को हम लोग triads बोलेंगे क्या? Then the answer is no. For example, Dobiner made a triad of lithium, sodium and potassium. तो triad बनाने के कुछ conditions क्या है sir? Number one, as I already told you, the elements must be present in their increasing atomic mass. So that means see, lithium is 7, sodium is 23 and potassium is 39 or 39.5. Now, next thing is, the elements must be selected in such a way that atomic mass of the center element, say for example, if I represent it with A, this with B and this with C, the atomic mass of the center element must be approximately equal to the atomic mass of first element plus atomic mass of third element divided by 2. Do you people agree with this? Yes, sir. Atomic mass of the second element must be an average of the atomic mass of the first and the third element. Sir, कौन सा first element, कौन सा third element हमें कैसे पता चलेगा? Increasing order of atomic mass. We will arrange them in the increasing order of atomic mass. When we do that, the element with the centered element atomic mass must come out to be the average of the first and the last element. If this is satisfying, then these three elements can be called as a triad. So sir, triad ban jane se fayda kya hai? The thing is, once this condition is satisfying, we can say that all these three elements, that is lithium, sodium and potassium, jo ki triad ke ek part hai, will have same or almost close chemical and physical properties. They will have similar physical and chemical properties. Do you understand this? Yes, sir. बाकी दो हाँ सर. और जी सुन रहे हैं? गुड. चल, तो इन दिस वे वी कैन मेक ट्रायड्स. तो चलिए, तो अगर अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत इसको और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद पूछता हूं. तो सर टेल मी, what might have gone wrong with Doberner? What happened is Doberner tried to arrange these elements, okay, way back in time, जब कुछ खास हम लोगों को एलिमेंट्स के बारे में पता भी नहीं था. एंड उस टाइम पे, ओके, उस टाइम पे कब Doberner almost arranged these elements in 1800s, that is around 1829. During that time, the number of elements known were very less. Okay, during that point of time, the number of elements discovered were very less. जब इतने कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो ये जब ट्रायड्स बना रहे थे, जो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से बना रहे थे. एंड he could not make many triads. Maximum of 3 to 4 triads उन्होंने बनाया, जिनमें से एक ट्रायड में कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं हो रहा है. राइट? इन दिस वे Doberner faced challenges in order to make like triads out of all the elements, and hence later on we needed or we got a chance to discard your Doberner's triads. This could not be a successful method of arranging your elements.
Do we understand this? Yes, sir. So what became the demerit for Dobberner's triads? Number one, this could not be extended to all the elements. Number two, any element which could be discovered in the future. मतलब say for example 1829 में डॉबरनर ये बताने के बाद, ओके, से फॉर एग्जांपल क्या हुआ 1845 में, से फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट डिस्कवर होता है जो कि जिसका कि एटॉमिक मास 7 और 23 के बीच में है। से फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिस्कवर हुआ। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। अब देखो तो ये 7 है, ये 23 है, इन दोनों के बीच में आएगा 17 नाउ। तो क्या हमारा डॉबरनर ये एलिमेंट के लिए कोई स्पेस छोड़ा हुआ था अपने क्या बोलते हैं अरेंजमेंट में? देन द आंसर इज नो। दैट मींस उन्होंने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स प्रेडिक्ट हो सकते हैं, उनके लिए मैं कैसे जगह छोड़ूंगा, कहाँ पे जगह छोड़ूंगा, या उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बात किया। So this became a huge demerit for Dobberner, and hence there came a need in order to eliminate your Dobberner's triads. क्या ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये ट्रायड्स बन सकते हैं कि नहीं। ओके ओके, चलिए देते हैं एक और ट्रायड का एग्जाम्पल। I'll tell you something, okay? ये क्वेश्चन देने के बाद कुछ बताऊंगा कि एग्जामिनर्स आप लोगों को कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं, ओके? Now tell me, can these three elements form a triad? If yes, then what will be the sequence? चलिए ट्राई कीजिए इसको। Barium, calcium, strontium. Can these three form a triad? हाँ सर, बन सकता है। ट्रायड बन सकता है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या आ रहा है? सर CaSrBa। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अच्छा, तो तुम कैसे कंफर्म किए कि ये बन सकता है? सर Ca और Ba को एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करने से B का आ रहा था सर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, सर कभी भी हम लोगों को कोई भी थ्री एलिमेंट्स को ट्रायड में होगा कि नहीं पूछेगा, तो सबसे पहला क्या करोगे आप लोग? तो पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एवरेज। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने डायरेक्टली इन दोनों का एवरेज निकाला तो कोई फायदा नहीं है, राइट? ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। नंबर टू, नाउ दैट दीज थ्री हैव फॉर्म्ड अ ट्रायड, क्या बोल सकते हैं हम लोग इन तीनों के बारे में, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम के बारे में?
क्या बोले थे हम लोगों ने? सर, elements which form a triad, elements which are present in a single triad, they have similar physical and chemical properties. याद आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डॉबर्नर्स ट्राइड्स, जिसका कि हम लोगों ने डीमेरिट्स भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे वन मोर फेलो who was a French physicist actually, Newland. Now Newland came up with a new idea of arranging elements, and he actually gave his law of octaves. What did he propose as? Law of octaves. Now, what are these, or what is this law of octaves, sir? Now understand, even Newland told the same thing, sir. When elements are arranged in increasing order, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, देख रहे हो people, what happened is Dobberner से right, लोगों ने और कोई कैटेगरी के बारे में सोचा ही नहीं। Okay, if he tried to arrange the elements in the increasing atomic mass, everyone followed the same rule, that is arranging the elements in their increasing atomic mass. किसी ने कुछ नया नहीं सोचा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे मिलने में इतना टाइम क्यों लगा, इसे बनाने में इतना टाइम क्यों लगा, इसे समझने में इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज वन फेलो स्टार्टेड arranging the elements in increasing atomic masses and everyone followed him. And one more problem was, at that time हमें ना इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। बाय दैट टाइम जब डॉबर्नर अपना लॉ दे रहा था या ट्राइड्स बना रहा था, तभी तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, हमें एटॉमिक नंबर कुछ क्या होता है नहीं पता था। बट उसके बाद भी कुछ लोग जब अपना थ्योरीज दिए थे, अपना अरेंजमेंट्स दिए थे, अपना क्लासिफिकेशन दिए थे, वो लोग भी वही पुराना तरीका, दैट इज अरेंजिंग एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को ही फॉलो कर रहे थे। इज देयर एनी इश्यू? Do you understand what did I say? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, what did Newland say? Say, for example, you are having few elements. If I arrange A, B, C, D, E, F, G, okay, in the increasing atomic weight, if I arrange them, then what he told is every eighth element, what did he say? Every eighth element is going to be is going to have almost the same properties as your first element. Okay, what according to your Newland, what exactly did he say? He arranged the elements in increasing order of their atomic masses or atomic weight, and he noted something, sir, that every eighth element had properties similar to the first element. Okay, so कैसे सर ये? तो न्यूलैंड वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक आल्सो। तो जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सर, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से रिपीट होता है आफ्टर एवरी नोट, after every eighth and seventh note, the eighth note repeat itself. In the same way, he thought maybe elements are also synchronized to music. Maybe elements भी musical notes के जैसा है, क्योंकि उन्होंने पहला 7 एलिमेंट को जब अरेंज किया तो 8th एलिमेंट जो है
वो फर्स्ट एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा था, फिर से 15th एलिमेंट जो है वो फिर से तुम्हारा जो है 8th एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा था। तो इससे पता चला कि ओके, मे बी एलिमेंट्स आर फॉलोइंग वन मोर ट्रेंड, they are following the law of octaves. Octa means 8, law of octaves means every 8th element is going to show the same properties or the similar properties as that of the first element. क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ सर। Okay, so तो क्या conditions हैं सर? Number 1, we have to arrange the elements in the increasing atomic masses or atomic weight, and when you arrange them in increasing atomic weight or mass, then you have to place 7 elements in 7 groups, and then the 8th element has to be dropped into the first group. In this way he tried to arrange few elements. Now एक प्रॉब्लम ये भी है सर, इवन ड्यूरिंग योर ऑक्टेव, दैट मींस इवन ड्यूरिंग योर न्यूलैंड नॉट मेनी एलिमेंट्स वेर येट डिस्कवर्ड, मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनका डिस्कवर होना बचा हुआ था, जिसके वजह से एक डिमेरिट हो जाता है हमारे न्यूलैंड लॉ का, दैट इज ही कुड नॉट लीव प्लेस for elements which were yet to be discovered. Say for example, क्या हुआ सर, A B C D अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, E F G H मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ओके, और मैंने क्या किया, ये I J K L इसको क्या किया मैंने एग्जैक्टली इसके पीछे कर दिया। एक सेकेंड बताता हूँ तुम लोगों को मैं, ध्यान से देखिए, ओके ओके, आई जे के इन सबको ऐसे हम लोगों ने इसके नीचे एग्जैक्टली अरेंज कर दिया। तो तभी न्यूलैंड को क्या पता था कि डी करके कोई एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा करके, सो उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा और उन्होंने सीधा अपना एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब आप लोग सोचो, जब फ्यूचर में एलिमेंट डी डिस्कवर होगा और उसका एटॉमिक वेट सी और ई के बीच में होगा, तब कैसे इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसको रिप्लेस करेंगे तो सब आगे चले जाएंगे, तो पहले जो हम लोग बोल रहे थे ए और आई सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, अब ए और एच सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो दैट इज व्हाई this became one of the demerit for our Newland's law of octaves, that when we have new elements which are yet to be discovered, obviously there will arise a problem in arranging them, number 1. Number 2, न्यूलैंड में कुछ कुछ जगह पे क्या किया, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा है, ओके, उसको भी उसने एक ही ग्रुप में डाल दिया। कभी कभी उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ग्रुप में लाके डाला, ओके, दिस बिकेम फ्यू डिमेरिट्स ऑफ योर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ओके, यू विल सी समथिंग, राइट, हम लोग ऑलरेडी इसको कहाँ पढ़े हैं सर, 10th क्लास में पढ़े थे, यस सर। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हाँ सर। वो कैल्शियम तक ही अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, उसके बाद ऑक्टेव्स काम नहीं किया, यस और नो? यस सर। हाँ सर। तो इसीलिए इवन इसको हम लोगों ने डिस्कार्ड किया। तो इसके बाद कौन आया, इसके बाद हमारे जो कैओस है इसको हटाने के लिए, दैट मीन्स हम लोग जितना जो मेहनत कर रहे थे, हर एक बंदा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे रहा था, इसमें से हमें बचाने के लिए कौन आया सर, द मेंडलीव, ओके। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लास 10th। मुझे बताओ मेंडलीव ने अपना एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया था? ओके, तो आप लोगों में से किसने किसने ट्रम्प कार्ड्स खेला है इससे पहले?
बताओ, ट्रम्प कार्ड्स खेले हैं आप लोग कभी? नो सर। नहीं? अच्छा, औरो भी नहीं खेला है? औरो? अच्छा, ट्रम्प कार्ड्स मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बच्चे थे तो क्या होता था, क्रिकेट के ट्रम्प कार्ड्स आते थे, WWE के ट्रम्प कार्ड्स आते थे। उसमें क्या होता था, हर एक प्लेयर का नाम का एक एक कार्ड होता था, उसमें लिखा हुआ रहता था कितना मैचेस उसने खेला, हाईएस्ट स्कोर कितना किया, उसका स्ट्राइक रेट कितना है, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ रहता था। तो से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कुछ कार्ड्स हैं, मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, औरों के पास, प्रियंका के पास कुछ कुछ कार्ड्स हैं। अब क्या होगा, मेरे कार्ड में मुझे लगा कि ओके, मेरे कार्ड में नंबर ऑफ कैचेस टेकन मेरे कार्ड में 300 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कार्ड में जो 300 है, आप लोगों के पास जो अभी सबसे ऊपर में जो कार्ड है उसमें 300 किसी का नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये कार्ड को मैं फेंकूंगा, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ कैचेस तो मेरा हाईएस्ट है करके मैं फेंकूंगा। अगर 300 से ज्यादा हाईएस्ट वाला कोई कार्ड होगा, अगर कोई फेंकेगा तो वो जीत जाएगा। तो तीनों के तीनों नीचे फेंकेंगे तीनों कार्ड, और जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस होगा वो तीनों कार्ड को ले जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। इस तरह का हम लोग कुछ ट्रम्प कार्ड्स खेलते थे बचपन में। तो वो क्रिकेट का होता था, WWE का होता था, पोकेमोन का होता था, सबका होता था। तो मेंडलीव ने कुछ ऐसा ही किया सर। क्या किया उन्होंने? मेंडलीव ट्राइड टू रिप्रेजेंट ईच एलिमेंट विथ वन वन कार्ड। तो उसने क्या किया, अपने वर्किंग टेबल पे ढेर सारे कार्ड्स ले लिए उन्होंने, और हर एक एलिमेंट के लिए उन्होंने एक एक कार्ड बना दिया। उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट, उस एलिमेंट के बारे में जो कुछ भी पता है उसने उस सब चीज को उस कार्ड में उन्होंने लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर हीलियम के बारे में पता है तो हीलियम का एटॉमिक वेट 4, और हीलियम के बारे में और क्या पता है, सब कुछ उन्होंने उस कार्ड्स में लिख लिया। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। And then the most important thing what Mendeleev did is this: every given element he took and he treated it with hydrogen, he treated it with oxygen, and then he tried to see what type of hydride that the element is forming and what type of oxide the element is forming. Okay, so he tried to treat all the given elements with hydride and oxide, and he tried to check, okay, whether it is forming, what type of hydride it is forming and what type of oxide it is forming, हर एक एलिमेंट के लिए। और उस एलिमेंट के कार्ड के ऊपर उसका कौन सा हाइड्राइड बनाया, कौन सा ऑक्साइड बनाया, लिख दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, he made a table. What type of table? Let us have a look. He tried to see, say for example, element m, एक एलिमेंट को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हाइड्रोजन को h से। तो से फॉर एग्जांपल ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हाइड्राइड किस टाइप का बनाता है, MH टाइप का बनाता है। ऑक्साइड किस टाइप का बनाता है, M2O टाइप का बनाता है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा तो ये कैसा बनाएगा, M+2 होगा, मतलब ये बनाएगा MH2। और तुम्हारा ये बनाएगा ऑक्साइड जो है MO टाइप, और M+3 होगा तो ये बनाएगा हाइड्राइड MH3 टाइप, और तुम्हारा ऑक्साइड बनाएगा M2O3 टाइप। M+4 होगा तो ये बनाएगा MH4, ओके, और ये बनाएगा MO2 टाइप। In this way, dot dot dot. In this way, he tried to see what are the different types of hydrides and the types of oxides which are possible oxidation state के हिसाब से। मतलब यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइप ऑफ कंपाउंड्स के हिसाब से। अब क्या किया, इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अपना ट्रम्प कार्ड्स को पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया। अब सबसे पहला कार्ड, कार्ड ए उन्होंने लाया, चेक किया
कार्ड ए क्या वो मैच कर रहा है? हाइड्राइड इसी टाइप का बना रहा है, यस। ऑक्साइड इसी टाइप का बना रहा है, यस। तो कार्ड ए को इसके नीचे रख दिया। नेक्स्ट उन्होंने लाया कार्ड सी, से फॉर एग्जांपल बी तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने लाया सी और सी को यहाँ पे मैच किया। क्या वो MH2 जैसा हाइड्राइड बना रहा है? नहीं, नहीं बना रहा है। क्या वो ऑक्साइड एमओ टाइप बना रहा है? नहीं, नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ ये नहीं आएगा, तो उसको कहाँ ले गए? थर्ड में ले गए। उन्होंने चेक किया क्या ये हाइड्राइड MH3 टाइप बना रहा है? यस बना रहा है। क्या वो ऑक्साइड M2O3 टाइप बना रहा है? यस बना रहा है। तो उन्होंने उसको कहाँ प्लेस कर दिया? थर्ड ग्रुप में प्लेस कर दिया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये जैसे ही सी में प्लेस कर दिया सर, मेंडलीव को पता चल गया देयर इज वन मोर एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास, से फॉर एग्जांपल ए का 5 ग्राम्स है, इसका 14 ग्राम्स है। देयर इज वन मोर एलिमेंट बिटवीन 5 ग्राम्स एंड 14 ग्राम्स व्हिच इज येट टू बी डिस्कवर्ड, जो बनाएगा इस टाइप का हाइड्राइड और जो बनाएगा इस टाइप का ऑक्साइड। देखिए मेंडलीव ने कैसे फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने स्पेस छोड़ा था। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और Yes, sir. okay, so in this way Mendeleev successfully arranged all the elements which were available at that point of time, and this became a huge success because इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना लॉजिकल अरेंजमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया था। लॉजिकल क्यों? देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है और हर एक एलिमेंट का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट करके ही उसको अरेंज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है ए के नीचे जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ हाइड्राइड, सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड बना रहा है, मतलब सेम केमिकल बिहेवियर शो करेगा। सो इन दिस वे Mendeleev became successful in arranging the elements and in order to give us the Mendeleev periodic table. क्या ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Okay, so now सर जब मेंडलीव इतना अच्छे से अरेंज किया था और इतना सब कुछ हमें पता था, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लेटर ऑन डिस्कार्ड क्यों किया गया? ऐसा क्या हुआ जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड किया गया? अब आप लोग मुझे 10th से थोड़ा बहुत बताएंगे कैसे, क्या था डिमेरिट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का? कौन बताएगा मुझे? Sir, हाइड्रोजन को एक स्पेसिफिक जगह में देता। आवाज बहुत कम आया बेटा तुम्हारा, एक बार और बोलो, मैं ध्यान से सुनता हूँ, बोलो। सर हाइड्रोजन को स्पेसिफिक प्लेस में देता। वेरी गुड, दैट्स वन ऑफ द डिमेरिट्स। तो सबसे ओके चलिए, तो सबसे पहला डिमेरिट जैसे औरो बोल रहा है, ही कुड नॉट मेक अ प्लेस और डिसाइड अ प्लेस फॉर हाइड्रोजन, बिकॉज हम लोगों को पता है कि नहीं हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट के जैसा भी बिहेव कर रहा था एंड एज वेल एज वो ग्रुप 17 एलिमेंट के जैसा भी बिहेव कर रहा था। मतलब हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट्स के जैसे +1 भी बनाता था और हाइड्रोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स जैसा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा डायटोमिक गैस भी बना रहा था। देखो तो F2 गैस है, Cl2 गैस है, Br2 गैस है, बट H+1 जैसे सोडियम दिखाता है +1, लिथियम, पोटेशियम, ये लोग सब सॉलिड्स हैं। तो ना ये +1 दिखाता है ग्रुप 1 एलिमेंट के जैसा और ये एक डायटोमिक गैस बनता है ग्रुप 17 के जैसा। तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ करें, where should we place this hydrogen? So that was one of the huge demerits of Mendeleev's periodic table. Very good beta, nice. Okay, तो ये सब होने के बाद बहुत दिनों तक हम लोगों ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को ही यूज किया, बट लेटर ऑन हेनरी मोसले and his team, not only Henry Moseley and his team, around 14 members थे इसके टीम में,
right? So Henry Moseley and his team did a X-ray diffraction experiment. What did they do? X-ray diffraction experiment. तो क्या होता है ये एक्सरे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में? What we will do is we will take elements and we will try to pass X-rays through them. We take elements and we will try to pass X-rays through them. When you do that, what will happen is the X-rays will pass through the metals because X-ray का penetrating power बहुत ज्यादा होता है, and then हम लोग उनका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, जो रेडिएशंस बाहर आते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोग नहीं, हेनरी मॉसले एंड हिज टीम ने कैलकुलेट किया था और उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास. तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास जब उन्होंने ड्रॉ किया, ये जो ग्राफ था ये काफी थोड़ा रैंडम या हैफेजर्ड आया, उस ग्राफ से कुछ खास पता नहीं चल रहा था. लेकिन जब उन्होंने अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर को उन्होंने प्लॉट किया, तो एक नाइस स्ट्रेट लाइन, दो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे पीक्स आते थे, but yet he got a nice straight line. From there, Moseley and his team decided that atomic weight is not the basis of classification, rather atomic number is the basis for classification. क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए स्टोरी बहुत सिंपल है सर. Henry Moseley and his team tried to carry out your X-ray diffraction experiments for almost all elements. When they did this experiment, they tried to draw a graph of under root of frequency, square root of frequency versus the atomic mass. पहले उन्होंने भी atomic weight को ही consider किया, but वो जो ग्राफ आया वो कुछ खास डाटा हमें नहीं दे पाया. That graph could not explain much and it was coming out to be a irregular graph. तो जिसके वजह से उन्होंने क्या किया सर, बाद में they tried to draw square root of frequency versus atomic number, that is your Z. Then they got a nice straight line graph, okay, and from there they understood, okay, that means a regular pattern of arrangement of elements will be done when we arrange the elements by using atomic numbers and not atomic weight. तो हम लोगों को मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मिलेगा और हम लोगों को अभी मिलेगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो आप लोग लिखेंगे, ओके, ये सब अगर आप लोग मेंशन किए हैं, आप लोग अभी लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अपने नोटबुक में. चलिए लिखिए. The physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of the elements, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers, are periodic functions of their atomic numbers. क्या ये समझ में आया? यस सर. जबकि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था सर? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट. तो उसको चेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में द physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers कर दिया गया. तो सर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब देखो, ऑब्वियस है बात, तब जब मेंडलीव अरेंज कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स,
और इन सब के बारे में कुछ खास आइडिया हम लोगों को नहीं था, एटॉमिक नंबर, number and other things. But as technology advanced, we came to know about atomic numbers, and then people started arranging. Okay, बाद में हमें पता चला that the chemical properties of elements are only due to the electrons present inside an element, जो कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या फिर डोनेट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो ये हम लोगों को पता चला. तो then people made the modern periodic table. Now the modern periodic table as it is, okay, consists of how many groups and how many periods. Okay, तो सबसे पहले what is a group and what is a period. Group means a vertical column like this is called as nothing but a group. Do we understand this? Yes, sir. A vertical column is called as nothing but a group. And how many groups do we have in a modern periodic table? 18 groups we are having. How many, sir? 18 groups we are having. And a horizontal row is called as nothing but your period. And as of now, how many periods do we have in a modern periodic table? We have 7 periods. So that means we are having 18 groups and 17 periods in which all the elements which we know till date are being arranged, are being classified. क्या ये समझ में आ रहा है सर हम लोगों को? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes. So now, सर बहुत अच्छा बात है, हम लोगों का 18 ग्रुप्स एंड 17 पीरियड्स में सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए. सर क्या हमारा सारा पीरियड्स कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं, 7th पीरियड अभी तक इनकम्प्लीटली फिल्ड है. यहाँ पे अभी भी कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जो येट टू बी डिस्कवर्ड है, कुछ है जो डिस्कवर हुए हैं लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो that is the reason what we are saying is the 7th period is yet to be filled. That means there are many elements of higher atomic numbers जो कि डिस्कवर होना बचा हुआ है. ओके, चलिए. सो सर हम लोगों को ठीक है, आपने एक छोटा सा जस्ट मैंने स्टार्टिंग बस बताया तुम लोगों को. तो मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होते हैं. तो अब इन 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में ईच पीरियड का एक कैपेसिटी होता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फर्स्ट पीरियड में कितने होंगे, सेकेंड पीरियड में कितने होंगे, दिस इज डिसाइडेड बाय द मैजिक नंबर्स. व्हाट डू वी कॉल देम एज द मैजिक नंबर्स. कौन है वो? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Yes or no? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. We will call them as nothing but our magic numbers. That means हमारे period 1 will consist of 2 elements, period 2 will consist of 8 elements, period 3 of 8 elements, 4 of 18 elements, 5 18 elements, 6 32 elements, and 7 32 elements. This is how each of our period will have the number of elements, right? Now we will see one important thing, sir. सर कल होके अगर हम लोगों ने 7th पीरियड का कोई एलिमेंट को अगर हम लोगों ने डिस्कवर किया, ओके, और हम लोगों ने चाहा कि उसका नाम हम लोग रखेंगे अभिपोनियम रखेंगे हम लोग, या प्रियोनियम रखेंगे, या ऑरोबियम रखेंगे, ऐसे अगर हम लोग रखना चाहेंगे, then will IUPAC agree with that? Then the answer is IUPAC will not allow. Hello?
एक मिनट, अच्छा वो मतलब 300 तुम ऐसे ही बोल दिए। तो फोन करो तुम उसको, लो बात करो। अब अच्छा होगा तभी ना लेगी, और 300 का क्या? और ऐसे ही जब मिलता नहीं है तो क्या करेंगे। ओके, क्या बोल रहा था मैं अभी। हाँ, अगर हम लोगों ने एक नया एलिमेंट को डिस्कवर किया, देन IUPAC, व्हाट इज दिस IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। okay, International Union for Pure and Applied Chemistry, this will not allow us, okay, पहले था, okay, रदरफोर्डियम या आइंस्टाइनियम, ये एलिमेंट्स हैं, okay, इन्हें क्या बोलते हैं, डिस्कवर भी किया गया था और उनका नाम भी रखा गया था, बट वो इसीलिए रखा गया था उनको ऑनर करने के लिए, उन साइंटिस्ट को उनका कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए रखा गया था। बट नाउ if someone discovers this, a new element, then you cannot give your own name to that, okay? All right, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, सर अगर कोई भी एलिमेंट हम लोगों को मिलता है whose atomic number is greater than 100, okay, whose atomic number is greater than 100, तो हम लोग उसे नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये नेमिंग समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। सर क्या है वो? सर देखिए, मैं एक छोटा सा टेबल अपलोड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ओके, तो सर हम लोगों को क्या समझना है बोलने से, हम लोगों को ये नोटेशन समझना है। क्या है ये, ध्यान से देखिए। सर 0 is named as nil and has an abbreviation n, that means 0 को रिप्रेजेंट करना है n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 1 is means named as un and is abbreviated with a u. 2 is by and is abbreviated with a b, okay। तो सर से फॉर एग्जांपल मेरे पास है एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर 118, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 1, मतलब क्या है देखिए, अन, ओके, 1 फिर से अन, ओके, 8 मतलब ऑक्ट, ओके, 8 मतलब ऑक्ट, और लास्ट में हमें क्या ऐड कर देना है, ईएम ऐड कर देना है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? अनऑक्टियम, ओके। 118 जो एलिमेंट रहेगा, इसका जो नाम होगा वो होगा अनऑक्टियम। तो अब पूछेगा कोई तुमसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हीलियम को He करके रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम को Li करके रिप्रेजेंट करते हैं। सर अनऑक्टियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लिखेंगे, फिर से क्या आ रहा है, अन, तो फिर से यू, ऑक्टियम मतलब ओ, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, UUO, तो वो हो गया तुम्हारा अनऑक्टियम। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो अगर मैंने बोला, अरे देखो बच्चों, एक एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन है UTS, बताओ तो ये कौन सा एटॉमिक नंबर है? सर 137। 137, वेरी गुड, 137, बहुत अच्छा बात। तो बताइए मुझे एक एलिमेंट को अरेंज करना है 108, बताइए इसका नाम क्या होगा? UNO. UNO बोल रहे हो, वेरी गुड, उनो, वेरी गुड, UNO, ओके। इसका नाम क्या होगा? अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम,
ओके, ये इसका नाम होगा। वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर an element having atomic number greater than 100 उसका नेमिंग कैसे करेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 119 इसका नाम भी बताओ और इसका रिप्रेजेंटेशन भी बताओ। ओके, 115 इसका नाम भी बताओगे और रिप्रेजेंटेशन भी बताओगे। चलिए, हो गया? हाँ सर। तो जल्दी जल्दी बताइए। तो बताइए 119 का क्या होगा? सर यू अन अन यू अन अन एनियम एनियम, एनियम। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यू 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 ई यूई। ओके, और 115 का यू यू अन पी अन अन पेंटियम पेंटियम, अन पेंटियम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाइड आवर गिवन एलिमेंट्स एंड वी नेम्ड देम अबव 100। कल तो ये था 10th में जो सीखे थे वही। कल हम लोग देखेंगे नया, और कुछ नया कुछ सेम, क्योंकि 10th में जो जो पढ़े हैं वहां से कुछ कुछ मैच करेगा और कुछ कुछ नया भी रहेगा। ठीक है, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। टिल देन हैव फन सर, मीट यू टुमारो। चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.